میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں۔ پختونخوا میں سوئے ہوئے جالوں کو جگانے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ اگلا ٹارگٹ کوہستان ہے اور کوہستان میں بھی ہم اس کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوہستان کے لیے طلعت محمود سے محبوب اللہ جان بہتر ہے۔ بالکل۔ تو دیکھ رہے ہیں زی 7 ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کافی عرصے کے بعد پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہوئے ہیں۔ کوہستان، ویسے کوہستان نہیں مسئلہستان کہتے ہیں ہم ہمیشہ اس کو، لیکن کوہستان میں بہت انمول لوگ بھی پائے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوہستان کے حقیقی معنوں میں نمائندگی کرنے والوں کو اگر فرنٹ لائن پہ لے کے آئے گی کوہستانی عوام، تو کوہستان کی پسماندگی ختم ہونے میں اتنی دیر نہیں لگے گی۔ ویسے کوہستان میں کافی مسائل ہے، لیکن ان کے پاس روڈ میپ ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھا ہوا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم انہی سے کوہستان کے حوالے سے سوال کریں گے اور ان کے مستقبل کے حوالے سے کریں گے، اور ان کے پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہم ان سے کریں گے۔ کوشش کریں گے زیادہ تر فوکس ہمارا کوہستان کے اوپر ہی ہو، لیکن اس کے ساتھ چند سوالات جو ہمارے پاس ہے ہم بھی ان کے ساتھ وہیں بھی ڈسکس کریں گے۔ اور مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اس کا تعارف کریں۔ جنید الرحمن نام ہے، لوور کوہستان، کوئلہ پالس کوہستان سے اس کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موجودہ وقت میں صدر ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے بہت شکریہ زی 7 ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے۔ شکریہ سر، ویسے تو کوہستان کے بارے میں بھی سوالات کریں گے، لیکن حالیہ دنوں میں ایبٹ آباد میں آپ لوگوں نے ایک ورکر کنونشن کیا، تو کیا سمجھتے ہو؟ ورکر کنونشن نہیں، بہرحال اس کو جلسہ کہے تو بہتر نہیں رہتا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو ورکر کنونشن کا نام دیا؟ سب سے پہلے ضیاء کوہستانی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور زی 7 ٹی وی کی پوری مینجمنٹ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا آپ نے۔ ہمارے ایبٹ آباد کا جو جلسہ تھا اس سے تقریباً 1 ہفتے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ جلسہ ہی ہے، لیکن بعد میں اکثر لوگوں نے اپنے پوسٹروں میں یا کہیں پوسٹوں میں اور اخبارات میں ورکر کنونشن کا نام دیا، چونکہ ورکر کنونشن نہیں تھا۔ ورکر کنونشن میں 25 یا 30 ہزار لوگ نہیں جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی ہال کے اندر کسی پارٹی کے خاص کارکن آتے ہیں، ان کو کوئی مخصوص انداز میں وہاں بریفنگ دی جاتی ہے۔ یہ چونکہ جلسے عام تھا اور ہزارہ ڈویژن کی تاریخ میں بہترین جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا۔ تو کیا لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے اس کو ورکر کنونشن کا نام دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں کوئی الحمدللہ ڈر نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2022 کے بعد پورے ہزارہ ڈویژن میں پیپلز پارٹی کے تنظیمیں جو ہیں بڑی فعال انداز میں کام کر رہی تھی، ہمیں کوئی جھجک نہیں تھی۔ البتہ جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے، یہ ہماری خوش قسمتی تھی، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ تھا، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نوجوان قیادت ہیں اس پہ لوگوں کا بہت اعتبار ہے۔ یہ رجحان بنتے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت مستقبل جو ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ مستقبل پیپلز پارٹی ہی کا ہے۔ ہر پاکستان میں جب بھی مشکل حالات آئے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس کو سنبھالا ہے، اور انشاءاللہ 2024 میں بھی سنبھالنے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں۔ سر، ویسے تو ہم نے بھی کوریج کیا، واقعی توقعات سے بڑھ کر لوگوں نے شمولیت کیا اور کافی تعداد میں لوگ نکلے، لیکن اگر ہم کوہستان کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ آپ لوگوں نے بخوبی لیڈ کیا کوہستان کو، کافی زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے کوہستان سے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے کوہستان میں۔ ہم نے سوچا تھا کہ اس جلسے میں کوہستان سے کم از کم 1000 بندے جمع ہوں گے، اور 1 ہفتہ ہم نے جو ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور اور بٹگرام میں کوہستانی ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کیے تھے۔ پھر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس، ہزارہ یونیورسٹی اور مختلف کالجز کے اندر اسٹوڈنٹ سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور کوہستانی کلچر میں یہ بات شامل ہے کہ جب باہر سے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، وہاں تمام چیزوں سے بالا ہو کے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یہی اسی کا شخصانہ تھا کہ کل ہم نے تعداد 2500 کوہستانی کو ہم نے دیکھا، باقاعدہ لیڈ کرتے ہوئے مانسہرہ سے ہم آئے۔ بالکل، بہت زیادہ لوگ آئے۔ سر، کیا سمجھتے ہو خیبر پختونخوا میں سوئے ہوئے جالوں کو جگانے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جیسے شروعات بھی ایبٹ آباد سے، کیمپین کے آغاز بھی ایبٹ آباد سے ہوا، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انشاءاللہ العزیز
ये वो दौर हम दोहराएंगे जो बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। हम इस वक्त तैयार हैं डिलीवर करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस अपना दिखाने के लिए हमारे कायदीन के दस्त शफ़क़त की ज़रूरत थी, वो भी पूरे होने जा रही है इंशाअल्लाह। अगला टारगेट कोहिस्तान है और कोहिस्तान में बड़ा जलसा करके दिखाएंगे, और बिलावल भुट्टो ने कल हमारे साथ कमिटमेंट किए हैं। कोहिस्तान आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। बिलावल भुट्टो कोहिस्तान का। सर, बिलावल भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और आसिफ अली जरदारी और उससे पहले भुट्टो, क्या ये तीन जो इनके सियासी रहनुमा है आपके, क्या बिलावल के पास भी वही विजन है कि वो पार्टी को इसी हिसाब से लीड करे कि नहीं? क्या डिफरेंट देखते हो आप इनमें? नहीं, बिल्कुल कोई इनमें कोई तफरुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी मंशूर है, उस मंशूर पे सारे अमल पैरा हैं। कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पर्सनालिटी थी, वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता है, वो दुनिया मोतरफ हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका विजन अब विजन वही है, उसका विजन वही है। भुट्टो जिंदा है का मतलब यही है कि उसका जो मिशन है, उसका जो विजन है, उसका जो नजरिया है वो जिंदा है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत जो है इस पे अमल होता रहेगा। जो भी आएगा वो इसी विजन पे चलेगा। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी रहनुमा हो, ज्यादातर हमने देखा है जो टीवी पे हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया के ऊपर हो, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। वो इस हक में है कि इमरान खान को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, और जो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है सारी पार्टियों को मिलना चाहिए। क्या समझते हैं आप? पीपल्स पार्टी एज ए नज़रिया आप लोग ये समझते हैं कि जो हमें जो प्रोटोकॉल मिल रहा है सियासी सतह पर, जो सरकारी सतह पर जो भी मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलना चाहिए या नहीं? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे बिलीव करती है। बिल्कुल, जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की अक्सर पार्टियों में जो मैच्योर लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, उसकी नर्सरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वहां से निकल के वो आए हैं। तो यहाँ पे किसी एक पार्टी, इमरान खान या नवाज शरीफ या पीटीआई या नून या जेयूआई की बात नहीं है। हम जमहूरियत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये हमारा मंशूर है। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ फांसी दी गई तो बेहतरीन उसका जो इंतकाम था वो जमहूरियत के ज़रिए 88 में हमने लिए। 88 में, बिल्कुल। और इसी तरह ये सिलसिला वहाँ नहीं थमा, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी हमने उसका इंतकाम जमहूरियत के तौर पे लिया। हम जमहूरियत के मुबल्लिग समझ ले हमें। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अगर कोई पार्टी काम करती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसलिए यहाँ पे जहाँ भी किसी के साथ गैर जमहूरी अमल हम होता हुआ देखेंगे तो उसकी हिमायत करेंगे। जहाँ कोई गैर जमहूरी अमल होता हुआ देखेंगे तो वहाँ पे हम बाकायदा मुखालिफत करेंगे, मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि उसने भी हिमायत किया कि इमरान खान को भी खुला माहौल मिलना चाहिए। सर, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, 2013 से लेके 2024 आने वाला है। क्या समझते हो आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें निकालने में कामयाब होगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। इस वक्त जिस संजीदगी का मुजाहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, तो इसमें बाशऊर तबके जो सियासी हलके हैं, वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या गिलगित या कोहिस्तान या पूरे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हर जगह में उसके कारकुन मौजूद हैं, नज़रियाती लोग मौजूद हैं। अच्छा, इस वक्त पीपल्स पार्टी ने इंशाअल्लाह अपने जो साबक़त अतवार हैं उसको दोहराने का ठान लिया है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो सियासी तौर पे सरगर्म हैं, और इंशाअल्लाह हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में उस ज़माने को दोबारा हम दोहराएंगे और बाकायदा इंशाल्लाह सीटें निकालेंगे। अच्छा, इफ्ताबाद में आपका सर, ये मेरे ख्याल में आपका एज ए वर्कर था, लेकिन सियासत में आने की वजूहात, एज ए वर्कर आपने काफ़ी काम किया, इसके बाद आपने बखूबी कोहिस्तान में आप एक्टिव हुए, सियासत में आए, क्या वजह? सबसे पहले तो चूँकि मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ, कानून का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। तो 1996 में जब मैं कराची गया और पीपल्स पार्टी के ज़माने, पीपल्स पार्टी के बारे में कहीं ना कहीं किताबों में मवाद हर किसी को मिलता है, चूँकि पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो
उन्हीं चीज़ों को लेके जब मैं कराची पहुंचा तो PSF का हिस्सा बना। तो मैं PSF में स्टूडेंट वर्कर हूँ, तो वहाँ से ये मैं चलता यहाँ तक पहुँचा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस ज़माने से लगाव हैं। और जब मैंने अपने इलाके को देखा, हमारे वहाँ जो पसमानदगी हैं, ज़बोहाली हैं, वहाँ जो महरूमी हैं, उस बारे में मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चूँकि यहाँ दो पैराए हैं, एक तरफ बंदा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, वो तकरीर करता है, मुबल्लिग होता है, बड़ी खूबसूरत तकरीरें करते हैं, ये बड़ा आसान काम है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप आराम से लोगों के लिए शोला बयानियाँ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि रोड मैप, नक्शा और लाहे अमल देते हैं ये लोग। और दूसरी तरफ जो है अमली सियासत है, इंतखाबी सियासत हैं, वो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि आप हल्के में जाके किसी को राज़ी करके, मनवा के, उनसे वोट लेके दोबारा 5 साल तक उनको उसी तरह से आप डिलीवर भी कर सकें और आइंदा जो है आप अपना मकाम को उस तरह से उनका एतमाद बहाल रख सके, तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हद तक सोशल तौर पे कोहिस्तान के लिए मैंने काम किया। उसके बाद मौका आया, पीपल्स पार्टी से मेरा लगाव था, और पीपल्स कई हलकों में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा मैं कहीं भी नहीं शामिल हो सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 2022 में मौका दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन ने मुझ पर एतमाद किया और अपने डिस्ट्रिक्ट का मुझे सदर बनाया। उसके बाद बाकायदा मैं सिस्टम का हिस्सा रहा और 2022 के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया और बेहतरीन वहाँ परफॉर्म भी किया। इस सवाल पे भी हम आते हैं सर, मेरे ख्याल में कितना अरसा हुआ फिर सियासत में आपका? सियासत में आने के बाद सबसे पहले तो ये है कि 1995 में मैं बच्चा था, उस वक्त मेरा कार्ड बना था, उस वक्त मेरा कार्ड बना था अपने कोहिस्तान में। अच्छा, वो जमाने से 95 से 2024 तक? जी हाँ, 95 से 2024 तक 29 साल मेरे पास वो कार्ड अब भी मौजूद हैं। और लेकिन अमली तौर पे मैंने जो काम शुरू किया है, सोशल एक्टिविटी मैंने तकरीबन 10 साल से, और अभी अमली तौर पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनेजमेंट में जो शामिल हुआ हूँ उसका ये तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। सर सियासत में आने के बाद आपके 3 साल हो चुके हैं, क्या सियासत में आने के बाद, अमली तौर पर सियासत में आने के बाद 96 से तो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन अमली सियासत में आने के बाद अपने हल्के से, कोहिस्तान से कभी इलेक्शन लड़ा है कि नहीं? जी बिल्कुल, 2022 में इलेक्शन लड़ा है तहसील चेयरमैन के लिए। तहसील चेयरमैन के लिए? जी हाँ, और चौथे नंबर पे आया हूँ पूरे 22 कैंडिडेट में से। चौथा नंबर था आपका? जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुज़श्ता 20 साल से वहाँ कोई वर्कर भी नहीं था, कोई कारकुन भी नहीं था, कोई एक अहदेदार भी नहीं था। मुझे फ़ख्र है कि 3 महीने के बाद मैं जब सदारत का नोटिफिकेशन हुआ और 3 महीने के बाद इलेक्शन आए, और ये यकीन नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम ने मुझ पर एतमाद किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चौथा नंबर आपका रहा सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर आने वाला इलेक्शन मेरे ख्याल में बहुत करीब है, कुछ 8 फरवरी है या कुछ 2 नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं कोहिस्तान में आने के लिए। तो कोहिस्तान के लिए आपके नज़र में 2 नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन हम लेते हैं। एक महबूबुल्लाह जान है और दूसरा सेनेटर तलहा महमूद साहब है, काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। क्या समझते हैं उनमें से कोहिस्तान के लिए कौन सा हमारे लिए, कोहिस्तान के लिए मुफीद होगा? ज़ाहिर है इस वक्त जो संजीदा हलके हैं वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि पूरी दुनिया का ये रवाज है कि नुमाइंदगी के लिए अपने उस इलाके से कोई बंदा असम्बलियों में भेजता है जी। वो नुमाइंदगी उस अंदाज में करता है कि वहाँ पे खूनी उनके रिश्ते होते हैं, वो उस इलाके से रिलेटेड होता है। वो अगर कोई सीट जीतता है या नहीं, हर हालत में उसको नुमाइंदगी करनी होती है। आप भी नुमाइंदा है, मैं भी नुमाइंदा हूँ, हर वो बंदा नुमाइंदा है जो उसका उस इलाके से ताल्लुक़ है। तो ऐसे में एक बंदा, हम वो भी एक मौसर आवाज़ जाके असम्बली को भेजें और असम्बली में जाके हमारी नुमाइंदगी होगी, तो वहाँ पे 2 फ़ायदे होंगे। एक तरफ हमारी वहाँ नुमाइंदगी होगी और दूसरी तरफ इलाका प्रोमोट होगा। हमारे कोहिस्तान के पड़ोस में जहाँ शांगला वगैरह हैं, वहाँ पे 1-2 लीडर्स ऐसे थे कि उनकी वजह से जो है शांगला अभी टॉप पे जा रहा है सियासी एतबार से। यही वजह है कि 2 जो नाम हैं उनमें से महबूब साहब कोहिस्तानी हैं और 1971 से लेके आज तक वो कोहिस्तान की नुमाइंदगी करता आ रहा है। तकरीबन ये उनका 71 से लेके आज तक चौथा बंदा है। सज्जाद उसका भतीजा है। जी हाँ, तो ये 4 बंदों ने हमारे भरपूर अंदाज में नुमाइंदगी की है डिस्ट्रिक्ट बनाने से लेके आज तक।
تو اس بندے کی زیادہ اہمیت ہوگی. اور میری نظر میں اس وقت طلحہ محمود اور محبوب کے درمیان طلحہ محمود کا کوئی دکھ ہی نہیں بنتا ہے. وہ ٹھیک ہیں, ابھی آئے ہیں, الیکشن لڑیں گے, پاکستان کے آئین اس کو اجازت دیتا ہے, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیکن نمائندگی کے لیے وہ اس طرح پورا نہیں اتر سکے گا. میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے کہ وہ ہری پور سے تعلق رکھتا ہے, کل ہری پور اور ایبٹ آباد کے درمیان اگر کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے تو وہ تذبذب کا شکار ہوگا کہ کس کا ساتھ دوں. تو یہ بڑی مشکلات آگے آنے والے ہیں. لہٰذا کوہستانیوں سے میری مدمانہ گزارش ہے کہ اپنے نمائندوں کو چن لیں. آپ کے پاس بہترین لیڈرز ہیں الحمدللہ. کوہستان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کا دنیا معترف ہے. سر, آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوہستان کے لیے طلحہ محمود سے محبوب اللہ جان بہتر ہے؟ بالکل. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 18 سال سے طلحہ محمود کوہستان کی خدمت کر رہا ہے, نہ الیکشن لڑا ہے کبھی کوہستان سے, نہ کوہستانیوں نے اس کو کوئی عہدہ دیا ہے؟ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ سینیٹر طلحہ محمود محبوب اللہ جان سے بہترین انداز میں کوہستان کا مقدمہ لڑے اسمبلی میں. یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ طلحہ محمود کوہستان کا مقدمہ محبوب جیسا لڑ سکے. ایون وہ افرین جیسا بھی نہیں لڑ سکتا ہے. ملک افرین جو ہیں وہ بھی چونکہ کوہستانی تھا, اس کے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس نے جو نمائندگی کی ہے اس جیسا بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر کا ہے. اور دوسری بات, آپ خدمت کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اس کے خدمت. ہاں, زکوٰۃ, صدقات اور خیرات دیے ہیں. اگر وہ خدمت ہے, اس سے زیادہ سی آر ایس اور یو ایس ایڈ نے زیادہ ہماری خدمت کی ہے, تو ہم ان کو الیکشن میں کھڑا کریں. کس طرح آپ کہہ رہے ہو؟ کافی جگہ پہ آپ نے خود دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کہیں پہ 4 لاکھ, کہیں پہ 5 لاکھ روپے دے رہا ہے. میں بالکل مانتا ہوں. یہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کی میں نے بات کی, وہ بھی پیسہ ہوتا ہے. زکوٰۃ اور صدقات میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں, تو الیکشن کی خواہش تو کسی سے ووٹ تو نہیں مانگ رہا اس وقت. یہ اس طرح ہے نا کہ ایک آدمی مثلاً کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, کوئی بھی کام, اور جاتے ہوئے وہ یہ کہیں کہ بھائی, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ تبلیغ کر رہا ہوں, میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں اسلام آباد میں, کوئی نہیں مانتا ہے کیونکہ میں مزدوری کرنے آ رہا ہوں, یہاں کاروبار کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں, 10 لاکھ کا بھی دیا تھا اس نے پہلے, وہ تو 500 اور 600 اور 800 روپیہ دیتا تھا, 1000 اور 2000 روپیہ دیتا تھا لوگوں کو بٹھا کے. آج انہوں نے 10 اور 12 لاکھ روپے کے بنڈل وہ بھی دکھا کے یوں دے رہا ہے, تو کوئی وجوہات تو ہے نا. ویسے تو پورا کوہستان پاسماندہ ہے اور بہت بیکورڈ علاقہ ہے کوہستان. ایجوکیشن ہو, انفراسٹرکچر ہو, یا تعلیم ہو, یا صحت ہو, لیکن اس میں کوئلہ میرے خیال میں لاسٹ میں ہے. کوئلہ آپ کے آبائی گاؤں ہے, آپ کا اپنا حلقہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو اتنا پاسماندہ رکھنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے. آپ کا اپنا ہاتھ ہے؟ بالکل ہمارا اپنا. آپ سے مراد ہمارا, آپ کے کوئلے کے جتنے قوم کا. یہ قوم کا اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کے حالات نہیں بدلتا ہے جب تک آپ کے ارادے نہیں ہوتے ہیں. کولے کے جو بنیادی وجوہات ہیں یہ پسماندگی کے پیچھے, نمبر 1, کولے میں عدم برداشت ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف بدقسمتی سے ایسا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو ہماری واقعی نمائندگی کریں. نمائندگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں 2-4 تقریریں کروں. حقیقی معنوں میں اپنے علاقے میں تبدیلی کے لیے, اپنے علاقے میں تعمیر اور ترقی کے لیے بندے کی کاوشیں ہوں, ایسا کسی نے کوئی نہیں کیا. البتہ الیکشنز لڑے ہیں, اس کے بعد اگلے چند سالوں میں غائب ہوئے ہیں, تو اس سے علاقہ جو ہے آگے نہیں آ سکا ہے. کولے کو پسماندہ رکھنے میں ہمارے اپنے ہاتھ ہیں, ہمارے قوم کے ہاتھ. بالکل. تو کیا آپ کے قوم کے پاس آنے والے الیکشن میں کوئی ویژن ہے کہ یہ تبدیلی آپ لا سکے؟ ویژن دینے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے. قوم میں ویژن نہیں ہوتا ہے. قوم بحیثیت قوم ایک کلچر چل رہا ہوتا ہے, وہ کلچر اوور آل قوم کے اندر ہوتا ہے, جبکہ ویژنری لیڈر آ کے اس کو چیر پھاڑ کے راستہ بنا لیتا ہے, روڈ میپ دیتا ہے, لائے عمل دیتا ہے, آندہ کے لیے ان کو ویژن دیتا ہے, نظریہ دیتا ہے. ہمارے کولے کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا لیڈر, حادثاتی طور پہ لوگ آئے ہیں, الیکشن لڑے ہیں, چلے گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے. ہمارے پڑوس میں پالس ہیں, پالس اور کولے میں اس وقت بہت فرق ہے. پالس میں بہت سارے لوگوں نے الیکشن جیتے, اس کے بعد پالس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. کولے میں ایسے حالات ابھی تک بن نہیں پائے ہیں, اور جب موقع آئے گا, کولے سے کوئی ایسا بندہ ہوگا, تو کولے کے بھی حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, کیونکہ کولے کی جو آبادی ہیں وہ پھیلی ہوئی آبادی ہیں, اور
शहर रेशम और दरिया सिंध के करीब तरीन इलाकों पे फैला हुआ है। ये बहुत दूर दराज या पीछे बैकवर्ड नहीं है। तो कोलई में दुनिया के वो तमाम वसाइल मौजूद हैं, बस इतनी देर हैं हमारे कौम में शऊर आएँ और कोई ऐसा लीडर हों जो कौम को लीड सके। तो आपके कोयले में, आपके नज़र में कोई है कोहिस्तान में जो कोयले वालों की जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा? अब जब कोहिस्तान की हम बात करेंगे तो कोहिस्तान तो 3 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल है, उसका NA की सीट एक है। तो उसमें इस वक्त मेरा मानना है कि कोहिस्तान में जितने भी लीडरशिप हैं सब बेहतरीन है, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे अकाबरीन हैं, उनका बड़ा रोल है हमारे माशरे के अंदर। सियासी मैदान में हम सबको कदर की नज़र से देखते हैं, सब काबिल कदर हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं महबूबुल्लाह जान, वो 1 नंबर पे हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, उसने LLB की है और 5 साल उसने बाकायदा पार्लिमानी सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है। और उसका जो ख़ानदानी पस मंज़र हैं वो सियासी हैं और तरबियती याफ्ता है। लिहाजा हमें इस पसमंदगी को ख़त्म करने के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास अब तजुर्बे करने का वक्त नहीं रहा। बड़े तजुर्बात हम कर चुके हैं और इस वक्त कोहिस्तान और बाकी मानदा पाकिस्तान में 50 साल का गैप बन चुका है। अब 50 साल से भी अगर ज़्यादा हुआ तो फिर हमारे कौम की जो है बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। वक्त आ चुका है कि हम ऐसे लीडर को मुंतखब करके भेज दें, ये ज़ाती चीज़ें छोड़ दें, इज्तिमाई सोच रखें। मेरा कितना इंटरेस्ट है, मेरा कितना ताल्लुक़ है आपके साथ, ये मानी नहीं रखता है। आपका मेरे इलाके से कितना ताल्लुक़ है, ये बड़ी बात है। क्या पोजीशन है कोयला पैलेस में? आजकल मेरे ख्याल में 2018 में आपका इत्तेहाद इत्तेफाक हुआ था, आप इत्तेहाद इत्तेफाक की सियासत के हक़ में है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं हूँ हम मलक अज़म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि मलक अज़म की वजह से जो है लोग बरादरियों में बिट जाते हैं, नफ़रतें पैदा होती हैं। हम तो सियासी मुबल्लिग़ हैं। गुज़िश्ता आपसे पहला इंटरव्यू हो रहा है, जबकि बाकियों के साथ गुज़िश्ता 10 साल से मैं इंटरव्यूज़ हर जगह पे बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है। तो हम सियासी तौर पे ये समझते हैं कि जब तक मेन स्ट्रीम वाली सियासत लेके हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, मुख्तलिफ पार्टियों के विजन के साथ नहीं चलेंगे, तो इस्लामाबाद और पेशावर हमें कबूल ऑन नहीं करेगा। और अगर हम कौमी धारे पे आके सियासत करेंगे तो जो छोटे तासुबात हैं उससे भी बचेंगे, और दूसरी तरफ हमारे सपोर्ट करने के लिए इस्लामाबाद और पेशावर में बंदा खड़ा होगा, पार्टी खड़ी होगी, वो अपने इलाके को उनकी मजबूरी होगी कि इस इलाके में डिलीवर करें ताकि अगले साल भी इलेक्शन के लिए उसने मैदान में उतरना है। क्या 2018 में आप इत्तेहाद इत्तेफाक में थे? बिल्कुल भी नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कभी भी कोले की ये तारीख रही है कि इत्तफाक, हमारे घरों में इत्तफाक नहीं है, अदम बर्दाश्त की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, तो इत्तफाक का तो सवाल नहीं होता है वहाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। मैं भी बेसिकली कोहिस्तान को पासमानदा रखने में मेरी याददाश्त से बात की बात है 2013 में इलेक्शन, तो यहीं मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहाद इत्तेफाक ने कोहिस्तान को गरक किया। सर आखिरी सवाल करते हैं आपसे, मेरे ख्याल में टाइम भी पूरा। आजकल सुनने में आ रहा है और देख ये रहे हैं और लोगों के एतराज़ात थे कि कोहिस्तान में पैसे चला रहे हैं, बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन कैंपेन के लिए और लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल, इस बात में हम थोड़े से मोहतात हैं। इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हुए हम अपनी बेइज्जती महफूज फील कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ रिलेटेड हैं शांगला, बटग्राम, तुरगर, गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ भी पूरे पाकिस्तान से कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हैं, इसी तरह हमें भी फॉलो करते हैं, हम भी किसी को फॉलो करते हैं। अगर हम बरमला सुबह व शाम ये बात करें कि कोहिस्तान में लोग बिकते हैं, तो ये अपनी बेइज्जती हम फील करते हैं। उस वजह से ये बात हम कम करते हैं। यहाँ इस दौड़ में हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन और हमारे उलमाए किराम बदकिस्मती से सब शामिल हैं। तो इस बारे में एक शेर दिमाग में आता है, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि आपको गिला है काफ़ी लोगों से, लेकिन आप चुप है। अशार से लग रहा है कि एतराज़ात आपको काफ़ी है अपनी आवाम से है, कोहिस्तानी हो या कोयले के जितने जो लोग हैं पालस के, एतराज़ात है लेकिन बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वक़्त आने पर देखते हैं, मैं भी बहुत मुखालिफत में हूँ जो भी सर। अच्छा एक सवाल, सॉरी मैं भूल गया, जहन में आए सर। इलेक्शन 2024 आ रहा है, इससे पहले मेरे ख्याल में 2006 में जितने जो इलेक्शन हुए, आपकी आदेश में कोहिस्तान में कभी पैसे लगे? इल्ज़ामात तो लगे हैं, लेकिन इस तरह चौक और चौराहों पे इस तरह सारे
बाजार कभी कोई नहीं बिका था, कभी कोई नहीं ये बिका। रिवायत नहीं रही। अच्छा, इस तरह नहीं हुआ है, वैसे इल्जाम पहले भी इल्जामात लग तो रहे थे। लगते हैं, इल्जामात सियासी मैदान में इल्जाम न लगे तो सियासत का मजा ही फीका हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैदुर्रहमान कुरैशी साहब, आपने जी7 टीवी को टाइम दिया, हम आपके मशकूर हैं सर। Thank you. टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा कोहिस्तान की जो मसाइल होती है और कोहिस्तान से जो संजीदे लोग हैं, कोहिस्तान की सियासत को समझने वाले, कोहिस्तान की महरूमी को ख़त्म करने वाले, कोहिस्तान कोई विजन हो कोहिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, तो इन के साथ और नशिस्त भी करेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अपने मेज़बान ज़िया खान कोहिस्तानी को दीजिए इजाज़त, अपना रखे ढेर सारे ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।